A lot of students think that getting into relationships has become like a big distraction in their lives. Is there any right time or age to get into a relationship? दिल मांगे मोर, जब दिल करता है, बुद्धि तो कहती है कि अभी एग्ज़ाम टाइम में नहीं करना चाहिए, मगर मन उस तरफ बह जाता है। जो एडिक्शंस है, स्मोकिंग, अल्कोहल एटसेट्रा, सो इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि हाउ कैन दे स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज एडिक्शंस? से दूर होने के लिए तुम स्मोक ना करो, तुम्हें 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा, तो क्या करोगे तुम? छोड़ दूंगा। हाँ, बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया पूरे कंट्री में, कॉल्ड एज लिव इन रिलेशनशिप्स। माई क्वेश्चन इज दैट स्पिरिचुअली स्पीकिंग, हाउ कैन वन नेविगेट सच अ रिलेशनशिप माइंडफुली, especially when tradition, family values and personal emotions pull in different directions? if you keep on experimenting with like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 living in relationship, it's not going to lead you somewhere. Somewhere you need to commit yourself and stop all that. शेयर बाजार में क्या होगा 3 महीने बाद? सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? Now love is a very very beautiful thing, but what is worse is something called as one-sided love. इसको डील कैसे करते हैं? And if I can ask, कभी आपको एक तरफा प्यार हुआ था? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि टुडे व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट आर some of the top skills and qualities you think that the youth should have as far as the Indian colleges and schools are concerned? They need to be proud of their roots. First of all, when you keep telling children that they are not good enough, their roots are not what they should stick on to, you should be more modern, look outward, and this sort of thing somewhere puts a psychological downtrend in their mind. That need to be avoided. Second, building the confidence. Building the confidence. Personality development. Education institutions should not be just an information bureaus. It should be personality building institutions. The new education policy has made all the major necessary changes in this. So that is very good, because earlier it was all very bookish knowledge. You may have passed IIT and you might have gotten 3-4 degrees in whatever physics and chemistry, but you will not know how to write a simple letter. A letter of invitation, you don't know how to do. So the skills were not expanded. We were not dexterous, multi-talented. So here we put emphasis on multi-talents. Do you think that degrees are going to be the past now and people should focus more on skill sets? Because a lot of startup founders also who are coming, they have a lot of skills and they are, let's say, college dropouts. Would you say that college dropout or maybe degrees is the past and skills is the future? We cannot generalize it like that. Not all dropouts can be very skillful. And this cannot be a reason for students not to study, not to get a degree. But we should always be open-minded as far as this is concerned. Not to be so prejudiced for or against degrees. Yeah. Yesterday in our session, you mentioned one thing that increasing screen time is reducing a lot of creativity of people. Let's say now today's generation, we are always on our laptops or mobiles. या तो reels देख रहे हैं या तो laptop पे we are working constantly on our laptop because of our corporate jobs. So in this environment, how would you recommend or advise us कि like since we are working 24/7 on laptops and mobiles, how do we ensure that we are reducing screen time and increasing our creativity? Eye exercises, treatment to eyes, time and again. Eye exercise very important. And blinking, we have several
desktop yoga, that would help. And meditation is a must. If you have lot of screen time you need to spend, you must do 3 meditations, not 2. That's not enough for you. I got a very interesting email from one of my followers. तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाई की है एंड वन स्टूडेंट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट भैया मेरा सीए फाइनल में सेकंड अटेम्प्ट था, मैं फेल हो गया एग्जाम में. इसका रीज़न है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत फ़ोन करती थी एंड काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो गया था. एंड ही वॉज आस्किंग मी एन एडवाइस दैट what is something that I should do. My question to you here is that a lot of students think that getting into relationships has become like a big distraction in their lives. What ideally, according to you, is the solution to this, or is there any right time or age to get into like a relationship? दिल मांगे मोर. जब दिल करता है, बुद्धि तो कहती है कि अभी एग्जाम टाइम में नहीं करना चाहिए, मगर मन उस तरफ बह जाता है. तो हमें क्या करना है, पहले ही निश्चय भी नहीं कर सकते हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. लाइफ में प्रायोरिटीज फिक्स कर देना चाहिए. एग्जाम टाइम में मैं एग्जाम पे रहूँ, और जब तक 22 साल है, 23 साल 24 साल है लड़कों के लिए, तब तक पूरा अपना करियर पे फोकस करें. ऑफ कोर्स रिलेशनशिप, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज इनटू दैट. इट मे नॉट पे बैक, सो यू शुड सी व्हेन यू शुड इन्वेस्ट. वो करना आवश्यक है. एंड बिफोर दैट वी नीड टू बी इमोशनली मैच्योर. और वो इमोशनली बहुत डेलिकेट स्टेट होता है टीनेज time. उस वक्त people feel lonely, they feel not heard, and there is a whole lot of emotional खिचड़ी उस वक्त पक जाती है मन में. वहीं पर तो एडवाइस चाहिए. They should have a mentor in life. They should depend on the mentors. And since we are talking about the youngsters itself, a lot of young people today are also stuck in a loop of like online distractions and काफ़ी सारे addictions भी हो जाते हैं. A lot of people have addiction of, let's say, smoking, alcohol. A lot of people have addiction to watching sensitive content which should not be watched at a young age, etc. So इनके लिए आपकी क्या advice है कि how can they stay away from all these addictions so that they can improve their focus power? Addiction is of any sort is bringing down one's energy and personality. So you must keep yourself busy with other engagement. Social engagement is essential. जब कुछ नहीं होता तो फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं. दोस्तों के साथ खेलना कूदना, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेना, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना, ये सब करने से एडिक्शन जो है ना के बराबर हो जाती है. और दूसरी बात है, जितने लोग ये सीए पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज़ में बहुत एंगेज होते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि आप लोग अवश्य म्यूज़िक पार्ट लो. हर रोज़ आधा घंटे कम से कम संगीत सुनना चाहिए, या तबला बजाओ, वीणा बजाओ, कुछ तो सितार सीखो. Use your right brain also. So if you don't give exercise to your right brain and you are using overtly the left brain only the whole time, it causes imbalance in your personality. I would say the same for people who are into too much of arts. People into arts, they become so emotionally यूं एक अप एंड डाउन हो जाता है. भाव कितना ज़्यादा हो जाते हैं, फिर फंस जाते हैं बहुत. इसलिए संगीत, नाटक, इसमें रहने वाले जो है, इनके लिए भी मैं ये कहूँगा थोड़ी देर तुम गणित पर ध्यान दो. साथ में थोड़ा गणित करो, एस्ट्रोलॉजी करो, या ये स्क्वेयर्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पजल है, स्क्वेयर्स है, उसमें आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा उसमें स्पेंड करो. तो राइट ब्रेन भी तुम्हारा, लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा. तो राइट ब्रेन वालों को ये कहती करो, मगर दोनों को
एक सलाह ये होगी कि ध्यान अवश्य करो, ध्यान करो। तो इससे जो एडिक्शंस है लाइक इवन स्मोकिंग, अल्कोहल एटसेट्रा, लाइक वो इसके लिए लाइक इज इट देखिए, बैड हैबिट से इससे बाहर दूर होने के लिए 3 चीजें होती हैं। एक तो आपको कोई लालच दे, ग्रीड, तुम स्मोक ना करो, तुम्हें 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा, 1 महीने तुम स्मोकिंग छोड़ दो, बोलो तो क्या करोगे तुम? छोड़ दूंगा। हाँ, अरे 10 लाख मिलेगा और उतना मेरे को गुड मेरिट्स मिल जाएगा, लक मिल जाएगा। हम कहेंगे तुम शराब नहीं छुओगे 3 महीने, तुम्हारा लक कितना बढ़ जाएगा, ताकि तुम जो है ना ऊपर चढ़ जाओगे, तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। कहने से कोई छोड़ेगा क्या? छोड़ देगा हर आदमी, कोई भी छोड़ देंगे। तो अरे हमको तो प्रेसिडेंट बनना है, तो 3 महीने इतना ही तो है, मैं बिल्कुल शराब नहीं छूंगा जी। मुझे बहुत धनी बनना है, फेमस एक्टर बन जाओगे तुम, ये कहेंगे 3 महीने या 1 साल तक तुम शराब मत छो, इतना तुम लक इकट्ठे कर लोगे, तुम बड़ा फेमस एक्टर बन जाओगे। तो छुएगा क्या फिर शराब? नहीं। तो ग्रीड एक है, लालच। दूसरा भय, डॉक्टर बोलेंगे तुम 1 और पेग लोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा तेरा, तुम्हें लेके चले जाएंगे, तुम मरी जाओगे, तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा। तब क्या करेगा आदमी? अरे भाई फिर नहीं छुएंगे नहीं। जब ये एड्स का इतना हो गया, तब अचानक लोगों में प्रोमिस्क्यूसिटी जो है कम होने लग गया था। ये एड्स का भय हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत पता चल गया, इतना ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग जो है अपने पार्टनर के साथ ही बने रहे हैं। तो भय से लोग आदतों से दूर होते हैं। तीसरा प्रेम से, तुम किसी को, माता पिता, कोई अपना बहन भाई या बच्चे को प्रॉमिस कर दो, गुरु को बोल दो, गुरु के सामने प्रण ले लो, नहीं मैं बिल्कुल नहीं छूऊंगा जी, और 6 महीने 8 महीने तक मैं बिल्कुल सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैंने वादा कर दिया, भगवान को वादा कर दिया, तब भी लगता है नहीं बिल्कुल नहीं करें। तो प्रेम से या भक्ति से या भय से या लालच से, कोई भी आदत से हम छुटकारा पा सकते। यहाँ बहुत लोग आते हैं, वो तो बोलते हैं कि पोर्नोग्राफी का मैं एडिक्ट हो गया, गुरुदेव यहाँ आके मैंने आप प्रतिज्ञा दे दो अभी आगे नहीं देखो, फिर उस तरफ नहीं मुड़ते हैं, उनको आदत से छूट जाते। फिर बोलते, अब बाद में आगे बोलते गुरुदेव अपने आप छूट क्या, हम यहाँ बोल के गए ना आपके पास, मेरी ये आदत से, शराब पीने की आदत बहुत हो गया था, ऐसे गया तो वो मन ही नहीं कर रहा था वो करने। इस तरह से अपने आप छूट जाते हैं। I have a very interesting question since we are talking about relationships and love. तो अभी एक बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया पूरे कंट्री में, कॉल्ड एज लिव इन रिलेशनशिप्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि शादी के पहले लड़का और लड़की साथ में रहते हैं देखने के लिए कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं, एंड देन दे डिसाइड टू गेट मैरिड। My question is that spiritually speaking, how can one navigate such a relationship mindfully, especially when tradition, family values and personal emotions pull in different directions? ये सब the West has experimented all this. So they have found that, it is not the very foolproof thing. So if you keep on experimenting with like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 living in relationship, it's not going to lead you somewhere. Somewhere you need to commit yourself and stop all that. And there are other ways to see the personality compatibility. Isliye you need to take that middle path. And just talking about love, you've said that from birth, love gets personalized. Then when you go deep in meditation, love doesn't need any stimuli from outside.
it is already existing everywhere, and we are floating in an ocean of love. Now, love is a very, very beautiful thing, but what is worse is something called as one-sided love. तो मेरा एक ये सवाल है कि इसको डील कैसे करते हैं, एंड इफ आई कैन आस्क, कभी आपको एक तरफा प्यार हुआ था? बस. मैं प्यार हूँ, प्यार को प्यार होता नहीं है, रहता है, समझ रहे ना? तो समझना मुश्किल है क्या कैसे रह सकते हैं ऐसे बिना प्यार के? ऐसे लोगों को मन में होता है, मगर एक अनुभूति ऐसी होती है, एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसके बाद दर दीवार दर्पण भयो जित देखो जित तोय, ये स्थिति होती है जहाँ देखो सब जगह वही देखो. बट इसको फिर लाइक डील कैसे करना चाहिए? इन द सेंस अभी लाइक अगर कोई एक से दो जैसे बेस्ट फ्रेंड्स है और एक लड़का और एक लड़की है, तो अगर उसको वन साइडेड लव हो गया, तो हाउ टू डील विद दैट एंड हाउ टू नॉट गेट अटैच्ड टू मच इन दैट सिचुएशन? वन साइडेड लव हो गया तो फिर देखो दूसरा टू साइड लव के लिए तो कोई और होंगे, वेट करते होंगे, वहां से तो मूव ऑन करना चाहिए. देखो प्रेम जबरदस्ती किसी में पैदा नहीं कर सकते. तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम हो गया, उनके मन में नहीं है, तो जबरदस्ती तो थोड़ी ना उनके मन में प्रेम, ये तुम चाहोगे तो उसको भी प्रेम हो जाए, नहीं हो सकता. इसके लिए जितना तुम नाटक करोगे उतना ज्यादा दूरी बनेगी. तो इसलिए जो है प्रेम का अभिव्यक्ति के लिए भी हमें विवेक चाहिए. हाँ, तो वो वही तो पहले अपनी व्यक्तित्व ऐसे बनाओ, अपना व्यक्तित्व चुंबक व्यक्तित्व हो जाए, अपने आप लोग खींचे हुए आएंगे आपके पास. तो आप खींचने की प्रयत्न करोगे, दूसरों को अपने ओर खींचने के लिए चेष्टा करोगे, अच्छा नहीं होगा. वो खीर में चटनी जैसे हो जाएगी. खीर में कोई चटनी मिला दे तो कैसा लगेगा, ऐसे हो जाएगा. और इसमें लाइक अभी पेरेंट्स वर्सेस किड्स की भी अगर मैं बात करूँ, तो जैसे जैसे एज ग्रो होते हैं, जैसे चिल्ड्रन बड़े होते हैं, थोड़े कभी कभी जैसे फाइट्स बढ़ते, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थॉट डिफरेंसेस बिटवीन अ चाइल्ड एज ही और शी ग्रोज विद द पेरेंट. देखिए अवश्य होता ही है, होगा ही है, ये हमेशा रहा है, ऐसा नहीं कभी था कभी नहीं. यहीं पर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए. माई वे इज हाईवे एटीट्यूड से सारा नुकसान होता है. जो मैं कहता हूँ वही वैसे चलूंगा, ये गड़बड़ हो जाता है. उसमें क्या, कभी उनका भी मान लो, कभी अपना भी बात रखो. मध्य मार्ग में चलना चाहिए. हर बात उन्हीं को मान जाना ये भी नहीं बनेगी, और हर बात अपने ही चले ये भी नहीं चलेगा. मध्य की रास्ता ढूंढो. 2 बार उनकी बात मान लो, 2 बार अपनी बात रखो, अड़े रहो. तब जाके किसी भी संबंध में, सिर्फ माता पिता नहीं, अपना स्पाउस के साथ भी, अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी संबंध में हमेशा गिव एंड टेक होता है. इट कैन नॉट बी वन वे. And generation gap is there. That's why you need to be more skillful in communication. You know, kids know how to cajole their parents, how to get them to their way. So as you become teenager, you forget those skills. Don't forget those skills. You know, as a kid, you have done, as a child, you have convinced your parents, and they have bowed to your wishes, your desires. But when you become a teenager, you become more stiff, because you always got what you wanted. The more you get always what you wanted, you become so adamant in your wishes, in your path, or in your concepts and your theory. Then you stop using your skills of convincing, of cajoling.
That is necessary. It is often said that you are the average of 5 people who you hang out with. So it's very, very important to choose the right friend circle and those 5 people who you are going to stay with. How to choose the right friends in life? You take a problem to your friend, you sit and talk to them, and when you come back, if you feel, oh my God, I thought it's a small problem, it's a huge, ये तो मुझे ले डूबेगा, ऐसा लगे तो वो अच्छे फ्रेंड नहीं है. You go to a friend with a problem and you come back and say, oh, that was not a problem at all. I unnecessarily kept worrying. इस टाइप की तुम्हारे भीतर भाव हो, वो सही दोस्ती है. लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए शॉर्ट टर्म जो भी तकलीफ उठाना हो वो उठाए. That which encourages this is good friendship. A good friend will tell you on your face what is right, what is not right. Okay? So those who give you constant feedback on how you can improve, how you can grow, like those are the right kind of people to be with. Yeah. And I come from a finance background. Just on a lighter note, ये मैंने जब डाला था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो एक ऐसा सवाल आया था दैट शेयर बाजार में क्या होगा 3 महीने बाद, सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा वो? बहुत सारे ज्योतिषी लोग हैं, सब कुछ कह रहे हैं, और कोरोना के लिए किसी ने कुछ बोला ही नहीं है. सब बोला सब बढ़िया रहेगा, शायद उनके हिसाब से सब अपने घर बैठे बढ़िया हो गया होगा. तो वो उनको अपना काम करने दो, मैं उनका काम नहीं लूँगा हाथ में, शेयर बाजार वाला. Okay? I just ask last question, if that Yeah. is okay? Yeah. So this is a question that I ask all my guests, by the way. So if you are in the shoes of Kushal Lodha and if you were doing a podcast with Gurudev, what is one question you'd like to ask Gurudev towards the end? I am already Kushal Lodha. I am asking whatever question he is asking. My only question that I ask everybody is, are you happy? If you are not, get happy right away. Don't wait for some other day. Okay? गुरुदेव आपके लिए जस्ट एक 4 लाइंस लिखी थी मैंने, वो मैं सुनाना हाँ, चाहूंगा। सुनाओ, अगर आप सुनाओ। इजाजत दो तो मैं बस वैसे लिखता हूँ राइम्स वगैरह के थ्रू. सो जस्ट सबके लिए था ये. हम सबका एटीट्यूड होना चाहिए ऑफ गिविंग एंड दैट यू विल गेट बाय गोइंग एट द आर्ट ऑफ लिविंग. अगर यहाँ पर आप आओगे तो मिट जाएंगे आपके सारे गम, जैसे ही आप सांस लोगे बाय लिसनिंग टू सो हम. गुरुजी, मेरी जब शादी होगी मैं आपको जरूर देने आऊंगा पत्रिका, और आपसे वादा करता हूं कि शादी के दिन भी मैं करूंगा 3 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका. ये आश्रम ने मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां लाई, सुदर्शन क्रिया करने से मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई. थैंक यू सो मच. इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू होस्ट यू. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Lovely. Very good. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.